भारतीय नौसेना एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। 2017 में हुए नाविका सागर परिक्रमा के बाद भारत की दो और बेटियां नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 2 पर जाने को तैयार हैं। वो समुद्री यात्रा करेंगी और पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। लगातार 3 साल तैयारी के बाद मिशन पूरी तरह से तैयार है। This will be a journey of discovery, not just for them, but for us as a Navy, of our discovery and rediscovery of the seas, of us as a maritime nation, and of course as us as a community that's on the cusp of a transformational change. So on behalf of all of you and on behalf of all personnel of the Indian Navy, I take this opportunity to wish the two women officers in front of us, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa, the very best of luck and good fortune as they embark on a very, very adventurous and important sport and a journey for us. So I wish you fair winds, following seas and many fathoms below your keel. Please go back, brave the weather, fight every single circumstance and come back victorious. समुद्र की लहरों को जीतने चली हमारे देश की शान, हमारी बेटियां। कहते हैं मजबूत सोच ही आपको एवरेस्ट पर फतह दे सकती है। कुछ ऐसी ही सोच ने इंडियन नेवी की 2 जाबाज महिला अफसरों को समुद्र की लहरों पर जीत के लिए तैयार कर लिया है। नाव से समुद्र के रास्ते दुनिया नापने निकलेंगी नेवी की 2 महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे वर्जन के साथ दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। Navika Sagar Parikrama 2, which by itself is reflective of how important this event is for the Navy. So firstly, on behalf of the CNS, Admiral Dinesh Tripathi, it is a matter of immense pride for me to welcome all of you as we raise the curtains on a very significant endeavor, which of course, as has been said, is Navika Sagar Parikrama 2, or Sagar Parikrama, the 4th episode of the Indian Navy's attempt at circumnavigating the globe. नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गोवा के INS मंडोवी से शुरू होगा। इस यात्रा में लगभग 21,600 समुद्री मील लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए इस चुनौतीपूर्ण अभियान पर रवाना होंगी। इससे पहले किसी भी भारतीय महिला अधिकारी ने डबल हैंड मोड में ऐसी चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी नहीं की है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। It is going to be a double-handed circumnavigation voyage and is also a testimony to the success that we have achieved as a Navy. It once again reiterates the commitment that we have as a Navy to support and foster the spirit of adventure, to push the envelope of human endurance and resilience, and raise the bar in our adventure sports every time we put out to sea. 2 अक्टूबर से शुरू होगा नाविका सागर परिक्रमा का दूसरा एडिशन। 8 महीनों का सफर
तूफान से लेकर हर चुनौती का करेंगी खुद ही सामना। 17 मीटर लंबी नाव में न कोई इंजन, सिर्फ हवा की ताकत से ही चलेगी नाव। भारतीय INS तारिणी 17 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी नाव, जिसमें सवार होकर समुद्र के रास्ते दुनिया की सैर पर निकलेंगी। इंडियन नेवी की 2 महिला अधिकारी, यह इंडियन नेवी का नाविका सागर परिक्रमा का दूसरा एडिशन है। INSV Tarini was inducted in Navy in the year 2017 and is named after the goddess Tarini in Odisha. The vessel was built by Goa Shipyard in 2017 and it is built by Aquarius Shipyard in Goa. The length of the vessel is 17 meters and width 5 meters. The other specifications are as shown on the slide. And I would like to mention that Tarini has already registered approximately 66,000 nautical miles under her keel, which includes 1 circumnavigation. सागर की परिक्रमा करना एक मुश्किल यात्रा होती है, जिसमें शारीरिक फिटनेस और सतर्कता की जरूरत होती है। और इसी के साथ इस मिशन में जो चीज महिला अधिकारियों के लिए फ्यूल का काम करने जा रही है, वो होगा उनका हौसला, हिम्मत, जुनून और मेहनत, जिसके बल पर ही वो इस मिशन को पूरा कर सफल होकर वापस लौटेंगी। इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बताया कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा 2 अक्टूबर को गोवा से सागर की परिक्रमा शुरू करेंगी। इस दौरान हाई सी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सामना होगा और ह्यूमन एंड्योरेंस की भी परीक्षा होगी। The vessel uses sails to harness the power of the wind, as it's a primary source of propulsion. And there are 4 sails which we use, and the usage of sails is depending on the weather conditions. The engines on board, our engine on board is used for entry and exit of harbor and in case of any emergency at sea. For the purpose of charging batteries, we have DG, we have engine, solar panels and wind generator. In case of any emergencies, we can use EPIRB and SART, which will be activated, and the rescue stations will be provided with our position. The communication equipment involves VHF sets, fleet broadband, Inmarsat C Mini and iSat phones. 3 साल से चल रही थी तैयारी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला और रूपा सागर परिक्रमा के लिए करीब 3 साल से तैयारी कर रही थी। नेवी ने सागर परिक्रमा के दूसरे एडिशन के लिए वॉलंटियर्स मांगे तो कई महिला अधिकारी सामने आई, जिसमें ये 2 महिला अधिकारी सिलेक्ट हुई। तैयारी के दौरान इन दोनों ने गोवा से मॉरिशस, गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरो और वहां से वापस गोवा से पोर्ट ब्लेयर तक का सफर भी बोट से पूरा किया। इन्होंने मेडिकल के गुर सीखे ताकि 8 महीने के सफर में खुद का ध्यान रख सके। साथ ही बोट को कैसे मेंटेन करके रखना है यह भी सीखा, क्योंकि 8 महीने की सागर परिक्रमा में इन्हें सब कुछ खुद ही देखना होगा। The favorable season to sail around the world is during the austral summer or the southern hemisphere summer, and it is from December to February. So this journey is going to take us approximately 8 months, and we'll be facing a range of temperatures and weathers throughout the journey. For example, as we cross the equator, we might face nil winds and extreme hot weather. And as we keep moving down south, crossing the latitudes, it will get colder and colder. And in the previous journeys, they have experienced hailstorms and snowfall at sea, with the temperatures falling down to 0 degrees. इस यात्रा के लिए सरकम नेविगेशन बेहद जरूरी है। इस सफर को उसी पोर्ट पर खत्म करना होगा जहां से शुरू किया जाएगा। किसी कनाल या स्ट्रेट से होते हुए नहीं गुजरना है। इक्वेटर को कम से कम 2 बार क्रॉस करना होगा। यह सफर कम से कम 40,100 किलोमीटर का होगा, जिस दौरान 3 केप्स से होकर गुजरना होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की केप लिविन, साउथ अमेरिका की केप हॉर्न,
साउथ अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप्स शामिल है। साथ ही इंटरनेशनल डेडलाइन को भी क्रॉस करना होगा। इन क्षेत्रों में समुद्री परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होती हैं, जो इस मिशन को और चैलेंजिंग बनाती हैं। The first circumnavigation of the world can be attributed to Ferdinand Magellan in the early 15th century. Since then, of course, adventurers across the globe have competed with nature, geography, the vagaries of the sea and weather, and sailed in multiple hull forms across the world over the years and transformed the art of ocean sailing. In India, the Indian Navy has been at the forefront of ocean sailing. As all of you perhaps know, we have 2 sail trailing ships in our training squadron, and every single officer who joins the Navy, when he or she joins the training squadron, does a small stint on a sail training ship. They live on a sail training ship and proceed to sea into the ocean. The primary idea being that they need to get to experience the elements, they need to see some hardships, and they need to build mental and physical resilience. The wind tends to blow from west to east, and in the latitudes 40 degrees south to 60 degrees south, they are known for the notorious strong winds, and that's why they are called the roaring 40s, the furious 50s, and the screaming 60s. Despite of all these challenging conditions, we are well prepared, and we have experienced rough weathers, heavy seas, and also we have successfully managed various defects at sea which happened during our previous preparatory sorties. It is an honor and a privilege to represent Indian Navy and the country in undertaking this journey. Jai Hind, Shamno Varuna. यात्रा के लिए दोनों महिला अधिकारियों को कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। आधिकारिक संरक्षक के रूप में कैप्टन दिलीप डोंडे और कमांडर अभिलाष टॉमी ने अहम भूमिका निभाई। कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10 में दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले भारतीय थे और कमांडर अभिलाष टॉमी ने 2022 में गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। यह दोनों रिटायर्ड अधिकारी दोनों महिला अधिकारियों के ट्रेनिंग से जुड़े रहे हैं। The success stories of Commander Dileep Donde, of course you know, Commander Abhilash Tomy and Navika Sagar Parikrama 1 stand testimony to our unflinching resolve to provide fillip to this very popular and very demanding sport. समुद्र की अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियां इस मिशन को और भी चैलेंजिंग बनाती हैं। तूफान, तेज लहरें और विपरीत मौसम की स्थितियों का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन दोनों अधिकारी इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मिशन के दौरान उनका आत्मविश्वास और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक दिशा भी तय करेगी। यह अभियान उन सभी महिलाओं को प्रेरित करेगा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। Sailing is a very tough sport. It has many moments of challenge, but it is a green sport because it has a very low footprint, a carbon footprint. It has zero emissions, perhaps close to zero, and it goes only by wind power. The vessel, of course, underwent a significant upgrade through a well-executed maintenance period in preparation for this forthcoming circumnavigation. The specifics of that also perhaps somebody will brief you in a short while from now. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आज से काफी साल पहले मैदान में अंग्रेजों से मुकाबला किया था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि महिलाएं आज सरहदों पर पहली बार खड़ी हैं, बल्कि वो हमेशा से हर सरहद पर मुकाबला करती रही हैं। और हाँ, कभी कभी यह सरहद और यह जंग कई अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन मुकाबला सभी महिलाएं कर रही हैं। It's a small boat, but its ability to sustain the most treacherous waters, its sea-keeping abilities under inclement weather conditions, and the state of art of her equipment, probably place her among the best in the world in her class. कौन है ये दोनों महिला अधिकारी?
लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना काफी यंग है। कम उम्र में ही इन्होंने काफी अनुभव हासिल कर लिया है और एक के बाद एक इतिहास रचा है। इनके कारनामों और कामयाबी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि यह समुद्री चक्कर लगाने जा रही हैं, बल्कि यह समय समय पर इतिहास रचती रही हैं और मिसाल बनती रही हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के केरला के कोड़िकोड की रहने वाली हैं। उन्हें साल 2014 में जून के महीने में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही उन्होंने देश के लिए सेवाएं देने का अपना लक्ष्य कायम रखा। उनके पिता देवदासन ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी और अब दिलना पिता के ही दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए पुडुचेरी की रहने वाली हैं। कमांडर रूपा जून 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी। रूपा ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलना पसंद किया और नौसेना को अपनी मंजिल बनाई। उनके पिता अलागिरी सामी जीपी भारतीय वायुसेना का हिस्सा थे। इस जोड़ी ने कई इतिहास रचे हैं और कई बार नारी शक्ति का झंडा बुलंद किया है। इन दोनों महिलाओं ने ज्यादातर मिशन साथ में किए हैं। 6 लोगों के दल के रूप में अधिकारियों ने गोवा से मॉरिशस तक यात्रा की और साल 2022 में वापस लौटे। पिछले साल यह दोनों महिलाएं 6 सदस्यीय क्रू के साथ ट्रांस ओशनिक अभियान में शामिल थीं। इस मिशन में वो गोवा से केप टाउन के रास्ते होते हुए रियो डी जनेरियो गई थीं। I'm really excited. We're well aware of all the difficulties we might face during the expedition. We are fully prepared. We have been training since almost 3 years for the circumnavigation. Upcoming voyage is going to be a challenging one, and I feel really excited and thrilled about it. Circumnavigation involves sailing around the world, starting and ending at the same port. Navigating through rough seas and storms of the Southern Ocean, we use only sails which harness the power of the wind. For a true circumnavigation, we must cross the equator twice, sail a distance of minimum 21,600 nautical miles, and pass via 3 significant capes: Cape Leuwin in Australia, Cape Horn, and the Cape of Good Hope. Everything has to be done by ourselves. You need to manage the boat, like put up the sails. It's very physically demanding and mentally demanding. Right from repairing of machineries and navigation, even cleaning, cooking, everything. In the middle of the sea, if anything goes wrong, in case we are far away from the land and we don't have any immediate support, I do have fear. It's very important that you have a right amount of fear so that you are safe and the boat is safe. You have to be mentally very strong to go through the extreme weather conditions, rough seas, storms, gale force winds. there's no teacher better than the sea. When you see the nature at its full force, which is something you cannot fight, so it just becomes an act of survival. पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा की तैयारी के बीच इन दोनों अधिकारियों ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2024 फरवरी के महीने में अधिकारियों ने गोवा से पोर्ट ब्लेयर तक डबल हैंड मोड में अभियान चलाया, जिसके बाद अब यह दोनों महिलाएं एक बार फिर से कमाल करने जा रही हैं।
For us, Navika Sagar Parikrama 2 is more than merely a voyage. It is a message that we want to put out, a message of empowerment, resilience, and commitment for something that's bigger than ourselves. It reaffirms the Indian Navy's pledge to uphold the highest standards of professionalism and responsibility, not just on our shores or along our shores, but across the vast expanse of the world's oceans. साल 2017 में जिस तरह 6 महिलाओं के ग्रुप ने नाविका सागर परिक्रमा मिशन के तहत समुद्री यात्रा की थी और हर तूफान, बदलता मौसम, तेज लहरें, हर तरह की चुनौती का सामना किया था, वो एक बार फिर से होने जा रहा है। पर इस बार 2 महिला अधिकारी इस इतिहास को रचने जा रही हैं। नाविका सागर परिक्रमा कितना खास है, आइए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में। नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 1। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बोडापति, लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति पी, लेफ्टिनेंट एस विजया, लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता। The inaugural Navika Sagar Parikrama was conducted in 2017, which was with an all-women crew that circumnavigated the globe on INSV Tarini. This was a crew of 6, and all of you know, of course, that they went all around the world and came back successfully. That venture transcended the boundaries of gender and geography and proved to the world the innate determination, skill, and courage of the women in uniform. इंडियन नेवी की 6 जाबाज महिला अफसरों को समुद्र की लहरों पर जीत दर्ज करते हुए पूरी दुनिया ने देखा था। 10 सितंबर 2017 को एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकली इंडियन नेवी की 6 महिला अधिकारियों की टीम 21 मई 2018 को भारत लौटी थी। 8 महीने से ज्यादा के सफर में इस टीम ने 21,600 नॉटिकल मील की यात्रा तय की थी। INS तारिणी पर सवार इस टीम ने 5 देश, 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 अंतरीपों के साथ भूमध्य रेखा को भी 2 बार पार किया था। इस टीम को लीड लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने किया था। इस यात्रा को नाविका सागर परिक्रमा नाम दिया गया था। इनके लौटने पर तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने गोवा में इनका स्वागत किया था। I feel extremely honored, and I repeat, I feel humbled before them for the achievement that they have made. And it's actually no longer, and I wouldn't want to break the narration, but I want to take the liberty to say it's not the girls achieving, it's youngsters from India achieving. It should be more motivational for man and woman. टीम के लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी और शुभकामनाएं दी थी। सागर परिक्रमा की पूरी टीम देश के साथ साथ दुनिया का भी दिल जीत कर आई थी। हमें उन पर गर्व है। पूरी टीम से संसद टीवी ने खास बातचीत की थी। आइए उनकी एक खास झलक आपको दिखाते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी से, जो कि आपने इस पूरे मिशन को लीड किया। बहुत आसान है कहना कि 21,600 नॉटिकल मील, 8 महीने का लंबा सफर। बहुत जल्दी मैंने इसको शब्दों में खत्म कर दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान था? ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो हम 3 साल से इसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते। अगर आप इवन एस्ट्रोनॉट्स को देखें, वो सालों सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनको एक मौका मिलता है स्पेस में जाने के लिए। तो ये एक ऐसा अभियान था हमारे लिए भी, जो कि इंसान मनुष्य के फिज़िकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट करने वाला ये एक अभियान था। ये जो 6 लोगों की टीम है, ये 2015 में बनी थी और तब से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। तो जनरली जो इंडियन नेवी में लेडी ऑफिसर्स हैं, वो ऑन बोर्ड शिप नहीं जाती, तो हमें सी और शिप का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। जो कमिटमेंट हमने दी थी, उसके बाद सिर्फ वो कमिटमेंट नहीं थी, वो कमिटमेंट के बाद जो हमारी लगातार लगाव था
हमें जो सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी, जैसे कि वो पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो, और हमारे खुद के प्रोफेशंस हो। हम कुछ तो हमारे ऐसे ऐसे प्रोफेशन है कि वो जॉब से ख़त्म होके मैं जब 8 घंटे की शिफ्ट करके मैं ATC से बाहर आती हूँ तो वो एक अलग सुकून होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने 8 घंटे सेफ कंट्रोलिंग की थी। तो वो सब चीज़ें सैक्रिफाइस करके यहाँ पे आके और एक ऐसा चीज़ करें जिसके बारे में हमें पता नहीं थी। हम 6 का ही एफर्ट नहीं है, इसके पीछे इंडियन नेवी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज इंडियन नेवी की वजह से ही हम लोग यहाँ हैं और आपसे बात कर रहे हैं। जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे वेदर ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कब किस समय क्या आंधी आ जाएगी, तो हम हमेशा तैयार रहते थे ये सोच के कि अभी कोई तूफान आएगा। प्रधानमंत्री जी का वीडियो कॉल हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा और इंस्पिरेशनल मिले, और उसके साथ साथ भी हमने बाकी और HC लाइक पैसिफिक में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और तासमान सी में पायल का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मेरे पैसिफिक में भी मेरे खुद के बर्थडे सेलिब्रेट किए, एंड देन न्यू ईयर आए। तो इन सब का जब भी जिस पोर्ट में हम लोग जाते थे वहीं पे हम लोग अरेंज करते थे। इस मिशन के बाद काफी बदलाव आए और इस मिशन का सीधा असर महिला प्रतिनिधित्व पर हुआ। भारतीय नौसेना में महिला प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें बढ़त है और साल 2022 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 6% हो गया है। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का नौसेना में प्रतिनिधित्व काफी कम रहता है। हालांकि इस मिशन का मकसद ही यही था कि महिलाओं को आगे लाया जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि भारतीय महिलाएं न तो कम हैं और न ही पीछे हैं। Navika Sagar Parikrama for us is not just an adventure activity, it is a reflection of our commitment to women empowerment, gender neutrality, and more importantly, to our quest to retrace the rich maritime heritage that we have and to develop maritime consciousness amongst the general populace of this country. Through Navika Sagar Parikrama 2, the Navy intends to showcase the resilience of these two young women, and we hope that whatever they do at sea will inspire millions of other young men and women both across the country to pursue a career of adventure in the armed forces. NSP2 is also an apt reflection of a maritime shipbuilding prowess, because the vessel on which they will sail, they will circumnavigate the globe, has been very much built in India, INS Tarini. साथ ही इस मिशन का मकसद सारी रूढ़ियों को तोड़ने का भी था, जिसमें काफी हद तक मिशन ने तरक्की हासिल की। और जब नाविका सागर परिक्रमा से महिला अधिकारी वापस आई तो उन्हें काफी सम्मान मिला। साथ ही कई महिलाओं और लड़कियों तक यह संदेश भी गया होगा कि वो अपने करियर के ऑप्शन में यह भी रख सकती हैं और भारतीय नौसेना का भी हिस्सा बन सकती हैं।